बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, सरेआम जलाने जैसे क्रूर घटनाओं, घरों और पूजा स्थलों में आगजनी तथा पब्लिक हिंसा के आरोपों को लेकर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जताई जा रही है। इसी कड़ी में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पारंपरिक हिंदू समाज ने बांग्लादेश वीजा ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और भारत में विरोधी टिप्पणियों के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर योजनाबद्ध हमले किए जा रहे हैं, जो न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी गहरा खतरा बन चुका है। संगठन का आरोप है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को सरेआम आग लगाकर बेरहमी से मारा जा रहा है, उनके घरों और धार्मिक स्थलों को जलाया जा रहा है। खास तौर पर ढाका स्थित भारतीय दूतावास पर हमलों के आरोपों को बेहद चिंताजनक बताया जा रहा है। ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাসকে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তি দিয়ে ওকে জীবন্ত জ্বালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের উপর অ্যাটাক করা হয়েছে, আগুন লাগিয়ে দিল। এটা বহু যুগ যুগ থেকেই চলছে বাংলাদেশের উপর, কিন্তু এই শেখ হাসিনা পদত্যাগের পর থেকে এটা বেড়ে গেছে। অত্যাচার ডেলি হচ্ছে, কিছু আসে, কিছু মিডিয়াতে খবর পাই, কিছু পাই না। এটা তো প্রতিদিনের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ওখানের এই যারা হিন্দু আছে ওখানের মা বোনদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে, রেপ করে খেতে ফেলে দিচ্ছে। কোনো প্রতিবাদ নাই। যে কোনো প্রতিবাদের আওয়াজ করে বা আওয়াজ উঠায় তাকেই মুখ বন্ধ করে দেয়, তাকেই মেরে দেয়। তো ভয়ে এখানে কম্পিত সবাই হিন্দুরা। আর বাংলাদেশের কথা বাদ দিন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেখানে চিফ মিনিস্টার মমতা বেগম নাসরি মমতাজি, ওখানে আপনার এই হিন্দুদের উপর কি হচ্ছে, মুর্শিদাবাদ, তারপর মালদা, দিন দাহারে আপনার মন্দির ভাঙছে, দিন দাহারে এখানে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কি আসলে ওখানকার হিন্দুরাদের বক্তব্য যে আমরা কি বাংলাদেশে আছি, পাকিস্তানে আছি, না ভারতে আছি? তো যাই হোক, আমরা দীপুচন্দ্র দাসের নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে আমরা সনাতন হিন্দু সেনার পক্ষ থেকে আজ এই বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসে, ভিসা অফিসে আমরা ডেপুটেশন দিব, বিক্ষোভ মিছিল করব, শান্তিপূর্ণভাবে আমরা মেমোরান্ডাম দেব। আমরা প্রতিবাদ করব যেন কোনো হিন্দু ভাইদের উপর আর যেন কোনো অত্যাচার না হয়। যদি ওখানে অত্যাচার হয় তাহলে এখানে আমরা তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि डिप्लोमेटिक स्थानों पर हमले इंटरनेशनल कानून का खुलेआम उल्लंघन है और इससे पूरे इलाके की स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि अगर ऐसी घटनाएं जारी रहती है तो भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्ते में तनाव और भी बढ़ सकता है और सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और खतरा पहुंच सकता है। इसी बीच त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और भारतीय दूतावास पर हमले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश कांग्रेस लीडरशिप ने इन घटनाओं को न केवल मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया बल्कि उप महाद्वीप में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी गहरा खतरा करार दिया है। पार्टी ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों पर हमले, घरों को जलाने और हत्या जैसे घटनाओं को एक लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद चिंताजनक बताया है। हालांकि कांग्रेस ने लोगों से अपील की है कि इन घटनाओं का विरोध करते समय त्रिपुरा के भीतर किसी भी तरीके का तनाव या सांप्रदायिक बंटवारा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पार्टी का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल लेवल पर जिम्मेदाराना व्यवहार जरूरी हो चुका है ताकि पड़ोसी देश में फैली अशांति का असर त्रिपुरा या भारत के अन्य राज्यों पर ना पड़े। আমাদের উচিত এরকম কোন মুভমেন্ট আমাদের তরফ থেকে যেন না করা হয়, যাতে করে বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা আরো এগ্রেভেট হয়। আমাদের এমন কোনো মুভমেন্ট করে আমরা কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারবো না। রাদার এই সমস্ত নিউজগুলো যখন বাংলাদেশের খবরের কাগজে, টেলিভিশনে দেখাবে, over there the fundamentalist force will torture the minority more. কাজে আমার দেশের সরকারের কাছে নিশ্চয়ই দেশের সরকার সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, সরকার টেক আপ করবে, ওখানকার মাইনরিটিদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করবে, আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে অক্ষত থাকে সেটা সুনিশ্চিত করবে। এই আবেদনটুকু ভারত সরকারের কাছে আমরা রাখছি, to take up the matter with the Bangladesh government and ensure that the lives and properties of the minorities in Bangladesh are protected.
আর আমার এপিল থাকবে সকলের কাছে, এরকম কোনো মুভমেন্ট, এরকম কোনো স্টেটমেন্ট আমাদের দেওয়া উচিত নয়। হয়তো আমাদের এখানকার রাজনৈতিক পারপাসটা ফুলফিল হতে পারে। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़े ये घटनाएं न सिर्फ ह्यूमन राइट्स के सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चली आ रहे संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। क्योंकि त्रिपुरा भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के बेहद करीब है, इसीलिए वहां के सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम का असर यहाँ खास तौर पर महसूस किया जा रहा है। अगरतला में हुए विरोध प्रदर्शन इस चिंता की अभिव्यक्ति है। जहां एक और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानव अधिकारों का मुद्दा है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संतुलन का तनाव बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति की ओर आकर्षित करने का भी मांग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।